Okay, good morning, good evening, good afternoon, class, whenever you're watching this. So, today we are going to start with a chapter that is called as Matter in Our Surroundings. तो एक ह्यूमन बीइंग जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो अपने आसपास कई सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आता है. फॉर एग्जाम्पल द पेन एंड पेपर दैट यू यूज़ फॉर राइटिंग, दैट इज़ बेसिकली समथिंग सॉलिड दैट यू कैन टच, यू कैन फील एंड यू कैन यूज़ द प्रेशर टू क्रिएट सर्टन काइंड ऑफ वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट्स. Okay, now when you drink water, either you drink cold water or hot water, so that is also a kind of sense कि जैसे cold drinks होती है और hot drinks होती है. For example, all the beverages like Coca-Cola, Pepsi, these are all cold drinks. Hot drinks में अगर आप आ सकते हो tea, coffee, so these are all determined by their temperature. Thirdly, let's take an example. अगर आप एक flower market से जा रहे हो तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, और वही जगह अगर आप एक कूड़ेदान के बगल से जा रहे हो तो you know that foul smell of decay and all the death comes from there. So not wasting further any time, let's come to the matter of fact. Everything in this universe is made up of a material which scientists have named as matter. In fact, इसका definition आपने अपने previous class में पढ़ा होगा. Anything that has mass and occupies space is called as matter. And you would have also come across law of conservation of matter, that matter can neither be created nor be destroyed. It can be only converted from one form to the other. Now, as we human beings are very curious, हमें हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है हमारे एनवायरनमेंट की या हमारे आसपास की चीज़ों की. तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे जो बहुत पहले के ज़माने में रहे होंगे, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन निकाला था पंचतत्व सिस्टम का. दैट इज़ हम पूरी दुनिया या पूरी धरती या पूरा संसार सिर्फ ये 5 बेसिक एलिमेंट से बना है, जिसको हम बोलते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. धरती, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश. दैट इज़ व्हाट वी कैन कॉल. नाउ दैट वाज जस्ट द फिलॉसफी. ओके, मतलब हमारे पास कोई साइंटिफिक एनेक्डोट नहीं था, हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था. एंड वी ऑल नो दैट एज CID एंड एज साइंस वी ऑल वर्क ऑन एविडेंस कि हमारे पास एक फैक्चुअल प्रूफ क्या होता है. नाउ ड्यू टू द मॉडर्न डे डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, वी हैव कम अक्रॉस ऑन 2 बेसिक टेक्निक्स. सो दैट इज़ बेसिकली जो क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुई है वो 2 प्रॉपर्टीज़ पे चलती है. दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड वी ऑब्जर्व दैट सिंगल पार्ट ऑफ मैटर जो भी हम देखते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. इनफैक्ट हम जिस पेंसिल, जिस मैंने इंक या पेन का प्रयोग किया है, एक नीडल के टिप पे दे कुड बी ट्रिलियंस ऑफ एटम. ओके, सो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइज. So to understand this, and most of all the particles of matter are very small. They are so small that this is beyond our imagination. So just for the sake of it, let's look into a certain example. Okay class, so continuing with the topic, here we see an example कि हमारे पास एक बीकर है और हमने उसमें एक स्पून लेके सॉल्ट ऐड किया, फिर हमने उसको स्टर किया. Now if you observe carefully, if you see over this, if I zoom into this, you see over here water के एक छोटे छोटे molecules दिए. now but obviously it is practically impossible to see such molecules by the naked eye. but just for our understanding sake, हमने water था, उसमें हमने क्या किया, salt add किया by using a spoon, and after adding the salt it was at the bottom. now when we stirred it, this is the most important aspect. जब हम नमक को basically पानी में add करके stir करते तो like magic it dissolves. so where does it go? So initially, if you can see very carefully, water has certain space between its own molecules. Now between that space, the salt molecules occupy themselves. So that is how small a matter could be. Okay, just for our sake of understanding. So this is what we can come across, that this is the size at which matter we are dealing with. Okay class, taking another example, here we have 100 ml of water. And in that 100 ml of water, we just add a pinch, मतलब बहुत कम मात्रा में हम क्या ऐड करते हैं, KMnO4, that is potassium permanganate. And potassium permanganate has the property to impart a color that you can see in the given display. Now if you look carefully over here, जो हमने पहली solution बनाई है जिसमें 100 ml है, उसमें हमने ऐड किया. अब हम उसमें से 10 ml लेके उसे फर्दर 100 ml में डाइल्यूट कर रहे हैं. तो इससे हमने क्या देखा कि यहाँ पे कलर थोड़ा फेड हुआ. अब वापस इस सोल्यूशन में से 10 ml लेके हमने इसको फिर से 100 ml में डाइल्यूट किया तो इसका कलर फिर से फेड हुआ.
And finally we again take 10 ml and we basically add it to another 100 ml of dilution. So we clearly observe the difference in the range of color that we see. But the point to notice over here ki the amount of KMnO4, that is potassium permanganate, we added. To make it simple for you to understand, ऐसा सोचिए कि आपके पास 100 ml का पानी था और उसमें आपने 10 ग्राम की चीनी ऐड की है. अब वही मिक्सचर में से आपने 10 ml लेके उसको फिर से 100 ml में डाइल्यूट किया है एंड अगेन यू टुक दिस एंड रिपीटेड द सेम प्रोसेस. सो यू वुड नो फॉर अ फैक्ट कि जो सबसे पहली सोल्यूशन होगी उसमें आपको काफ़ी मिठास पता चलेगी. यू विल इवन टेस्ट द शुगर. But as you move forward and forward, it will become a little faded, and up to a point where you may not even be able to taste it. But still, that sugar molecule is present over there. So that is how small a matter can be. Now, as we saw how small particles can be, now we come to the characteristics of particles of matter. Characteristics का मतलब होता है कि उनकी स्पेशल या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती है. तो इसका मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले सकता हूँ कि नींबू पानी. तो जब भी आप एक लेमन वाटर का ड्रिंक या लेमनेड कंज्यूम करते हो तो उसमें आपको लेमन का भी टेस्ट आता है, सॉल्ट का भी टेस्ट आता है, शुगर का भी टेस्ट आता है. एंड इफ़ यू आर वेरी एडवेंचरस, यू ऐड सम जलजीरा इनटू इट, यू कैन ऑल्सो टेस्ट द स्पाइसेस विच आर प्रेजेंट इन इट. नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली ओवर हियर कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक नींबू पानी का ड्रिंक बनाते हो, यू कैन टेस्ट ऑल द इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर. सो इट दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट मैटर हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम. अब आप लोगों के कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, सर व्हाट अबाउट द टेस्ट ऑफ वाटर? सो फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक वाटर हैज टेस्ट, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. वाटर इज कलरलेस, ओडरलेस एंड अ टेस्टलेस सब्सटेंस. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, सो जब ये जो स्पेस इनके बीच में होता है तो उसकी वजह से ही वो एक दूसरे को अकोमोडेट कर पाते हैं. सेकेंडली, particles of matter are continuously moving. Now this is very important. Let's take an example, incense stick या अगरबत्ती. अब क्या होता है कि जब आप एक अगरबत्ती को जलाते हो तो विद इन द सेम टाइम फ्रेम ऑफ स्पैन आपको उसका अरोमा नहीं आता है, बट आफ्टर लाइक 2, 3, 4, 5 minutes it spreads the aroma in the entire house. So how does it happen? Because the particles which are released in the form of smoke are moving continuously around the house, and that is how we are able to get the aroma of the incense stick. अब ऐसा होता क्यों है? Heating increases the moment as kinetic energy increases. Now we all know for a fact कि अगर आप किसी भी molecule को ज़्यादा energy दोगे तो वो move करेगा. And thirdly, the mixing of particles of two different types of matter on their own is called as diffusion. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप अगरबत्ती को जलाते हो तो अगरबत्ती के स्मोक के पार्टिकल्स विच आर वेरी टाइनी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, दे गेट डिफ्यूज्ड इन द एयर. मतलब छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स होते हैं तो ही तो जाके हमें अगरबत्ती की अरोमा आती है. जो धुआं होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो अगरबत्ती के एंड से धुआं निकलते रहता है वो धुआं एक पॉइंट के बाद गायब हो जाता है. तो एक्चुअली वो गायब नहीं हुआ है, वो आपके गिवन एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो गया है, मतलब पूरे तरीके से घुल चुका है, जिसके कारण उस अगरबत्ती बुझने के बाद भी इफ द अगरबत्ती हैज रन आउट ऑफ द फ्लेम, उसके कम से कम आधे घंटे बाद तक यू कैन गेट द अरोमा. व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी एटॉमिक पार्टिकल्स हैव डिफ्यूज्ड और मिक्स्ड इनटू द एयर. ओके, नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. Okay, so if you look carefully over here, particles of matter attract each other. We know for a fact each kind of matter carries a different type of charge. Certain carry positive charges. अगर आप atomic level पे देखोगे तो positive charge carry करता है proton, negative charge carry करता है electron, और no charge, that is a neutral, is carried by neutron. And the law of charges is that opposite charges attract each other, like charges repel each other. Okay, so with that being said, we are done for this lecture. Class, please make sure to write down these notes and certain definitions as we go across the lectures. Thank you for your time.